से जा जाता है सर। हम्म। सब ठीक है। कल्याणी that's so sweet.
हाँ, रिकॉर्डिंग। So are you hearing me? Hello? Are you getting my voice? कैसा आ रहा है? क्लियर है? पहले से अच्छा है ना? हाँ सर। तब तो ठीक। इसमें एक ऑप्शन रिकॉर्डिंग का भी देख रहे आ रहा है, जो हम कॉल क्लास लेंगे वो रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, तो अभी तो देख रहे हैं कि ओनली 8 स्टूडेंट इसमें ज्वाइन किया है, 8 से ज्यादा तो आया नहीं है। पता नहीं, सबको तो चला गया होगा मैसेज। जैसे कि हम ऑनलाइन आते हैं तो देखते हैं कि उसका नोटिफिकेशन जाता है, सबको नोटिफिकेशन भी गया होगा, लेकिन अभी भी बहुत से लोग, हाँ फिर भी ज्वाइन 10 हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, 5 मिनट में देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि ये पोएम तो लगभग हो ही चुका है, और थोड़ा सा इसमें मान लिया सेस्टेड बाकी था, वो भी जो हम नोट्स लिखा रहे थे, तो उसको जो पढ़ेगा तो उसको क्लियर समझ में आ ही जाएगा। फिर भी आज ये फर्स्ट क्लास था टीचमेंट के द्वारा, तो सोचे इसी से देखते हैं, उसके बाद फिर कोई दूसरा क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये लगभग कंप्लीट होने को ही है। उसके बाद हम लोगों का द वे ऑफ द वर्ल्ड का रिवीजन क्लास करा देंगे, 2 क्लास, और उसके बाद डॉल्स हाउस मंडे से प्रोबेबली वो भी क्लास में शुरू हो जाएगा। क्योंकि द वे ऑफ द वर्ल्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वे ऑफ द वर्ल्ड एज ए कॉमेडी ऑफ मैनर और एज ए रेस्टोरेशन कॉमेडी, एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लंडन सोसाइटी, and there is no more questions from this book besides this one. I have completed all the questions. Once again, I will make you revise what we have learned. However, there are so many aspects, other characters as well, which we have not studied. So, मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। तुम लोग को मेरा वॉइस तो जा रहा है ना? सर दोनों आ रहा है सर। ओ, दोनों आ रहा है। तो हाँ, इसका क्या सिस्टम है कि हमको वीडियो नहीं दिख रहा है? ओ, इसमें कोई सेटिंग होगा, पता नहीं। हमको अपना वीडियो जैसे कि पहले दिखता था उस तरह का नहीं दिख रहा है। कल समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, देखते हैं। एनीवे, हमको अपना वीडियो आए अथवा नहीं आए, उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। Yes, now I am getting. You have to touch here, sir. Okay. So let us start. Transformation. You have already understood the gist of the poem. Actually, I have mentioned in the very beginning that this is a very complicated poem because it deals with some spiritual thought which at this certain stage the students cannot understand. Even the teachers cannot explain it in more details. I have also read the explanation and the analysis of these poems on Google and net, but I realized that there are different views, there are different types of analysis of the lines of the poem by different scholars or the whatever maybe you call YouTuber and those persons who have put their video on Google's or whatever. I observed that different scholars are different in their view regarding the analysis of some of the lines of this poem. I myself has dictated in the notes something different as I am explaining it, and I had told you in the classroom that this is an old notes. I have not made it revised, and I had thought that I will revise this notes and I will make it easier. If I get an opportunity, I will sure give you another notes of the transformation. You will have to study till it, then you will be given another notes. If you find difficult for the preparation this notes, then I will give you another notes, and my language will be very simple, and you will find same things in the notes as I have explained you here in the class. But that note which I have dictated you
differs a little from my explanation. So let the other student join. 11 students have joined, and I will wait no more for any students. I have to start the session. 1 minute. I just. Okay. Good evening, sir. ठीक है, ओके। मात्र 11 स्टूडेंट आया है। अब हमको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि इसमें से कौन कौन आया है, क्योंकि हम देख रहे हैं स्वानी गुप्ता, ऐसा परवीन, ईसा, अनीसा, रोशनी, हुसैन, प्रिया कुमारी, पायल कुमारी, कौशल, ये हम दूसरे रूम में अपना ही टेस्ट करने के लिए ऐड किए हैं, देखना चाहते थे कैसा आ रहा है, दूसरा मोबाइल से है। सपना कुमारी, सबा और मोहम्मद मकसूद। सो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर मिसिंग and they have not joined. I have been informing that class will start from 8 o'clock, but still they are not very conscious about their class. And I am here for you. If you will not present, then why? I will make the effort. So it will go in hand if you will not present in a great number. So once again, although they are not present here, so it is useless to say something about him. My breath runs in a subtle rhythmic strain. It fills my members with a might divine. I have drunk the infinite like a giant swine. Time is my dream or my patient train. Now are my illumined sails, joy flaming scheme, and change thrilled and branching nerves to channels of rapture, opal and hyaline, for the influx of the unknown and the supreme. I have explained these lines. This is a sonnet, and these 8 lines, the first stanza of the sonnet, you know that Petrarchan sonnet, it is in the form of a Petrarchan sonnet, also known as Italian sonnet. It has 2 stanzas. The first stanza is of 8 lines, and the second stanza is of 6 lines. In the 8th stanza, in the first stanza, which is known as octave, you will find the rhyme scheme similar to all of the poems which has been written in this Petrarchan sonnet form. Strain, divine, wine, passion, dream, scheme. So I have made it clear that the rhyme scheme is Abba, Abba, strain A, divine B, again wine A, dream B, dream. So all things have been taught by me, only I have to clear the 4 lines of the poems. The poet here in this poem, you know that, is describing his experience when he had transformed himself from a common or ordinary person to a yogi, means to a spiritual person, from a sensuous person to a spiritual person. And he is in this particular poem is describing. However, Aurobindo in other of his poems has described the way you can get spirituality, how you will become a yogi, what is sadhana, and how you can achieve this परम आनंद, किस तरह से परम आनंद को प्राप्त किया जाए, योगी के किस तरह से योग विद्या के जरिए आनंद की प्राप्ति की जाए, वह कैसा मीडियम है, इसके बारे में बताया जा चुका है अरविंदो के द्वारा। बहुत सा फिलॉसफी है जो अरविंदो ने दिया है अपने पोएम्स में, लेकिन इस पार्टिकुलर पोएम में अरविंदो उस प्रोसेस के बारे में नहीं बताता है जिसके जरिए कि हम इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके जरिए कि हम परम आनंद को प्राप्त करें। वो प्रोसेस क्या है, योग साधना क्या होती है,
इसके बारे में इस कविता में नहीं बताते हैं। वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जबकि वो एक योग गुरु बन चुके हैं और कहते हैं माई ब्रीथ रन्स इन ए सटल, मतलब कि अब ये तो बता ही चुके हैं कि अब किसी भी प्रकार का एक्साइटमेंट कवि को प्रभावित नहीं कर सकता है। उनके अंदर जो है अब श्वास की जो लय है वह एक नियमित रिदम से प्रवाहित हो रहा है और इसके कारण क्या हो रहा है, इट फिल्स माई मेंबर्स। इसके कारण उसके जो शरीर में जितने भी ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जितने भी पार्ट्स है शरीर के, वह एक दैवीय शक्ति से, माइट डिवाइन, एक दैवीय शक्ति से वह अब अभिभूत हो रहा है। आई हैव ड्रंक द इनफाइनाइट, और कवि को लगता है कि ऐसा मानो कि मैंने इनफाइनाइट को ही पी लिया है। इनफाइनाइट का मतलब होता है ईश्वर, यानी ईश्वर को मैंने अपने अंदर समाहित कर लिया है और मैं बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका हूं। अब चूंकि मेरे अंदर ईश्वर का वास होने लगा, हमारे अंदर एक ऐश्वर्य शक्ति आ गई है, तो मैं अपने आप को बिल्कुल उसी तरह से अब ट्रांसफॉर्म कर चुका हूं जिस तरह से कोई दैत्य जो होते हैं, कोई दानव जो होते हैं, वो शराब पीने के बाद अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। यहाँ जाइंट का मतलब एक्चुअली जाइंट नहीं है, एक्चुअली हो गया कि एक बैड पर्सन जब शराब पीते हैं, यूजुअली जब कोई भी व्यक्ति शराब पीता है तो उसे बैड पर्सन के रूप में ही जाना जाता है। और जब वह व्यक्ति शराब पी लेता है तो वह अपने आप को किस तरह से मतलब कि पाता है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होता है, यानी कि वह अपने कॉन्शियस को खो देता है और फिर वह अपराध करने की तरफ प्रेरित हो जाता है। तो उसमें आपराधिक गुण आ जाता है और आपराधिक गुण उसका बढ़ जाता है। यहाँ कभी जस्ट अपोजिटिवली कह रहे हैं कि अब हमारे अंदर जो मानव थे हम, और मानव में तो काफी दुर्गुण होते हैं, कई प्रकार की बुराइयां होती है, लेकिन अब वो उन बुराइयों को जस्ट अपोजिटिवली, अब उन बुराइयों को बिल्कुल वह खत्म कर चुके हैं और वह अपने आप को बिल्कुल परिवर्तित पाते हैं। अब टाइम इज माई ड्रीम, और यह जिंदगी कवि के लिए अब एक स्वप्न, मतलब कि एक स्वप्न के समान लगता है कि जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी उनके लाइफ में हो रहा है, लगता है कि वह कोई एक स्वप्न सा देख रहा है। और वो भी कैसा स्वप्न, एक ऐसी स्वप्न जो कि लोग खुले आंखों से देखता है। अक्सर होता यह है कि खुले आंखों से हम लोग हमेशा स्वप्न देखते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड फैंसी, दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन, बट एक्चुअली इट डजंट हैपन। बट नाउ द पोएट इज एबल टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन द लाइफ। अब कभी यह जान जाते हैं कि उसके जीवन में क्या होने वाला है, अगला जो टाइम है उनका कैसे व्यतीत होगा, क्योंकि अब कभी के लिए यह लाइफ जो है, एक्चुअली यह टाइम लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। यह समय यानी एक जीवन, यह जीवन बिल्कुल एक स्वप्न के समान हो रहा है जिसे कि वह खुले आंखों से बिल्कुल देख सकते हैं। मतलब ये कि अब कभी अपने आगे क्या होने वाला है उसको देखने में सक्षम हो चुके हैं। एक्चुअली होता यह है कि हम लोग हमारे साथ क्या होगा आगे, हम इस बात को नहीं जान सकते हैं। और कहा मैन इज कंप्लीटली ब्लाइंड टू द वे ऑफ फेट, he is a fool, he becomes very soon very elated, happy, joyous at their smallest achievement, at their smallest victory, and suddenly at their smallest loss as well they become very dejected. But they don't know this day of victory, this day of happiness, this day of their joy can suddenly be changed into a day of curse forever and ever. This is the greatest sorrow with man. With legs and hands, it appears that man has been thrown on the earth, and they have to do only on this earth what he is directed to do by the God. ऐसा लगता है कि सिर्फ मनुष्य को यहाँ पर धरती पर हाथ गोड़ लेकर के भेज दिया है कि जाओ तुम्हें करना है, और क्या करना है, हम क्या करेंगे कल और उसका क्या परिणाम होगा, इस बात से हम बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि हमें यही पता नहीं है कि हम कल क्या करेंगे और जो हम करेंगे उसका क्या परिणाम होगा। क्या हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हमें पता है कि हम इस पढ़ाई का किस तरह से यूज कर पाएंगे? क्या यह श्योर है कि हम इतना पढ़ लिख करके इतना मेहनत करेंगे, फर्स्ट क्लास बीए करेंगे, फर्स्ट क्लास एमए करेंगे, पीएचडी कर लेंगे, क्या हम कॉलेज में कभी प्रोफेसर बन करके पढ़ा सकेंगे? हम इस बात को बिल्कुल नहीं जानते हैं क्योंकि वो हमारे अधिकार में नहीं है। हम सिर्फ अपने कर्म को कर सकते हैं, उसके फल पर कोई अधिकार नहीं है।
ये हम नहीं जानते हैं कि क्या होने वाला है मेरे साथ, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं वो जान जाते हैं कि अब उनके जिंदगी में क्या घटित होने वाला है। वो चीज जो होती है, एक साधना होती है, उसे वैसे तो जागृत कुंडलिनी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे इनलाइटनमेंट कहा जाता है। इनलाइटनमेंट एक अवस्था होती है जो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, इनलाइटन हो सकता है वह व्यक्ति, और जब वह व्यक्ति इनलाइटन हो जाता है तब फिर उसे कम से कम ये तो एहसास हो जाता है कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं इसका ये रिजल्ट होगा। अब चूंकि हम ये कर्म कर चुके हैं और हमें पता है कि इस कर्म का ये परिणाम होगा, तो ऑब्वियसली हम जान रहे हैं कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि कर्म पर हमारा अधिकार है, हम कर्म कर सकते हैं, भले फल क्या होगा उस पर मेरा अधिकार नहीं है और हम नहीं जानते हैं कि क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इस साधना से हम यह जान सकते हैं कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। इसी को प्राप्त करने के लिए जो तपस्याएं की जाती है एक अलग है, एक योग विद्या, कई ढंग से ये साधना की जाती है। इसके लिए एक अलग फिलॉसफी देते हैं अरविंदो। अरविंदो अपने अलग पोएम में, और अरविंदो फिलॉसफी अगर तुम सर्च करो गूगल्स पे तो मिल जाएगा फॉर रिगार्डिंग मेडिटेशन, कि आखिर किस तरह से मेडिटेशन किया जाए कि हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। बट द पोएट इज मेकिंग क्लियर दैट नाउ ही हैज अचीव्ड दैट स्टेज इन हिज लाइफ। कवि यह बता रहे हैं कि हाँ, मैंने योग साधना से उस स्टेज को हासिल कर लिया है कि यह जब पूरा जीवन हमको एक स्वप्न के समान लगता है, जिसे कि लोग खुली आंखों से देखते हैं ख्वाबों को, वह जो कि देखते हैं लेकिन होता नहीं है। हम आंख में इमेजिन करते हैं, माइंड से फिगर लाते हैं, बट एक्चुअली इट डजंट हैपन, ये होता ही नहीं है। बट लेकिन पोएट कहते हैं कि मैं देख सकता हूं कि खुली आंखों से जैसे स्वप्न देखा जाता है कि ये हो रहा है, उसी प्रकार से मैं देख सकता हूं कि अब मेरे जीवन में क्या क्या होने वाला है। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन, टाइम इज माई ड्रीम or my Persian train. Now are my illumined sails twice. Now the sails of the poet has become illumined, means spiritually enlightened. This is the fact, enlightenment. तुम्हारा enlightenment होने का मतलब है कि तुम्हारे शरीर के अंदर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो enlightened हो जाए। enlightened होने का मतलब होता है जब वो enlightened हो जाता है तो यहाँ लाइट शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब है कि उसे प्रकाश निकलता है, और वह प्रकाश आनंद का प्रकाश। स्वामी विवेकानंद का कल युवा दिवस के रूप में कल मनाया जाता है। अगर स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि स्वामी विवेकानंद जो थे उनके जो रूप थे उनसे एक प्रकार का ग्लो निकलता था। यानी कि अगर स्वामी विवेकानंद के बाह के बगल से तुम गुजरो तो इतनी चमक थी कि उसमें तुम्हारा तस्वीर उग सकता था, जैसे कि ऐनक में उग जाता है। इस प्रकार से उनके शरीर से एक आवा निकलती थी, क्योंकि वो एक सही मायने में एक योगी व्यक्ति थे। सारे धर्म को वो, चूंकि योगी का तो ब्रह्मचर्य को वो मतलब कि चूंकि तो उनका ब्रह्मचर्य अवस्था पार करने के बाद ही उनका डेथ हो गया, चारों आश्रम को वो प्राप्त नहीं किए थे, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत को उन्होंने मात्र पालन किया था। बस एक ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन से उनको इतना शक्ति आ गया था कि उनके चेहरे से ग्लो निकलती थी, उनके चेहरे से आवा निकलती थी। मैंने तुम्हें कभी स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में बहुत सी कहानियां हैं जो बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित कहानियां हैं, उसमें से तुम लोगों को मैंने कभी सुनाया होगा कि स्वामी विवेकानंद जब युवक थे, जब उनकी उम्र 21-22 वर्ष के थे, तो उनमें जबरदस्त आकर्षण आ गया था और उनके शरीर का वर्ण ताम्र वर्ण हो गया था, बिल्कुल तांबा जिस तरह से होता है उसी प्रकार का वर्ण हो गया था, और उससे एक ग्लो निकलता था जिसे हम लोग ग्लेजिंग कहते हैं चेहरे का। यही है इल्यूमिन सेल्स, इसी को इल्यूमिन सेल्स कहा जाता है कि अब सेल्स इल्यूमिन हो गया है, एक प्रकार का आवा, एक प्रकार का ग्लेजिंग चेहरे से निकलता है। सबसे बड़ा आकर्षण इसी में होता है, चाहे आंख नाक कान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर ग्लो खत्म हो जाए फेस का तो फिर वहां आकर्षण नहीं रहता है। हमें हमेशा मेंटेनेंस करना चाहिए कि हमारे चेहरे में ग्लो है कि नहीं है, यानी कि कहीं ग्लेजिंग है कि नहीं है, क्या चेहरे का रंग बद्दा हो रहा है, क्या चेहरे में चमक है कि नहीं, ग्लोइंग। एक सर्टेन एज में होता है ग्लोइंग। इसके पीछे तो वैसे बहुत सा रीजन है कि इसे कैसे अचीव किया जाए, कैसे चेहरे को
ग्लो किया जाए, क्रीम लगाने से नहीं होता वास्तव में। कुछ चीजें होती है जिस पर नियंत्रित करने की आवश्यकताएं होती है, वही तुम्हारे चेहरे के ऊपर से आता है और ग्लोइंग आता है। तो खैर जो भी है, तो स्वामी विवेकानंद से आकर्षित होकर के एक गर्ल्स थी जो कि उसी लैन में रहती थी, उसी गली में जिधर से स्वामी विवेकानंद का घर था, और वहां से वो निकलते थे। निकलने के दरमियान उस गली के छत के ऊपर एक लड़की थी जो हमेशा स्वामी विवेकानंद को देखते रहते थे जब भी वो निकलते थे, और उससे वो बहुत मतलब कि इतना प्रभावित हो गई थी, इतना मतलब कि उससे उसको अट्रैक्शन हो गया था स्वामी विवेकानंद से, क्योंकि उसके उसी के गली में रहते थे और बचपन से ही मतलब उसको जानते थे, आकर्षण होगा। लेकिन एक ऐसा समय आया कि जब वो अपने आप को बिना एक्सप्रेस किए नहीं रह पाए, ये जानते हुए भी कि स्वामी विवेकानंद एक ब्रह्मचारी है, स्वामी विवेकानंद एक योगी है। ये सभी लड़कियों को एक बहन के दृष्टिकोण से देखते हैं और सभी औरत को एक माँ के दृष्टिकोण से देखते हैं। फिर भी स्वामी विवेकानंद ने ये साहस की, कैसी साहस की, सॉरी उस गर्ल्स ने यह साहस की कि स्वामी विवेकानंद को हम प्रपोज करें। तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? तुम लोग मेरे आवाज को सुन पा रहे हो? यस सर। क्लियर आवाज है ना? यस सर। ठीक ठीक, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आवाज में प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर हो सकता है मेरा माइक वगैरह का प्रॉब्लम हो। तो फिर जो है स्वामी विवेकानंद को जब उसने प्रपोज कर दी, ये कहानी तुम लोगों को कभी सुना है क्या? लिसन दिस स्टोरी? नो। तो तुम लोगों को एक कहानी जो इसी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये कहानी सुना रहे हैं। एक्चुअली एजुकेशन जो होता है ना, उसका मुख्य उद्देश्य, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि अपने अंदर के अंधकार को खत्म करना और प्रकाश में जाना। मैन यही है। ये पोएम तुमको इसीलिए दिया गया है। हर एक पोएम में बहुत मॉरल्स होता है और एक उद्देश्य है। अगर सही मायने में लोग शिक्षित हो जाए तो वो अपने अंदर की बुराई को पहचान करके उसको खत्म कर सकता है। बहुत कुछ रहता है, कोई भी पोएम्स रहे, कोई भी स्टोरी रहे, कोई भी नॉवेल रहे, उसमें लाइन के अलावे जो लिटरेरी लाइंस है उसके अलावे बहुत डीप मीनिंग रहता है। और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि अंधकार से प्रकाश में आना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यही है शिक्षा। तुम लोग कभी लिखा होगा, देखोगे एजुकेशन, उसके ऊपर में तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे हे मां अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना और अच्छाई को प्राप्त करना। इसलिए इस बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। हम तुम लोगों को बता चुके हैं कि एक ऐसा उम्र है जिसमें कि अपनी बुराई को पहचान तो तुम ले सकते हो लेकिन उसको खत्म नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। यह उम्र का एक पड़ाव है जिसमें लोग अपनी बुराई को जान सकता है, कोशिश कर सकता है, बहुत हद तक कम कर सकता है, लेकिन उम्र के साथ तुम्हारी जो अंदर बुराइयां हैं वो खत्म हो जाती है और फिर वो होता है। तो एजुकेशन का मतलब है कम से कम उसको पहचान तो लो। हम उसको खत्म ना कर पाए, उसको खत्म करने में हम अक्षम हैं, सही बात है, लेकिन हम उसको पहचान के रख लें ताकि टाइम आने पर जब फेवरेबल आ जाए, मेरे फेवर में हमको उतना कैपेसिटी हो जाए तो हम उसको अलग करें। तो फिर जब उसने प्रपोज की स्वामी विवेकानंद को, तो स्वामी विवेकानंद ने तो उसके प्रपोजल को फर्स्ट में डिनाई नहीं किया, और स्वाभाविक था कि डिनाई करना ही था क्योंकि वो एक योगी थे और वो समझते थे कि ये जो उनका तो था ही नहीं कि विवाह नहीं करना था, उनको ब्रह्मचर्य उनको रहना था, उनका ये तप था। फिर भी जो है जब रिजेक्ट किया गया तो उस लड़की ने मतलब कि ऐसा जिद पकड़ लिया कि स्वामी विवेकानंद को यहां तक कहा कि अगर आप कल मेरे कमरे में नहीं आते हैं तो मैं इसी छत से कूद करके आपके सामने जान दे दूंगी। जिस समय आप गुजरते हैं आपको मेरे लाश से होकर के गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक योगी थे, महात्मा थे। इसलिए उसने उस लड़की की आंख में देखा एक बार तो पता चल गया कि ये पागल है और ये ऐसा कर लेगी। She has grown mad। वो कल छत से कूद करके
जान दे देगी, अगर आप इसके कमरे में नहीं जाएंगे तो ये जान दे देगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे कमरे में कल अवश्य आएंगे। समय दिया, वो लड़की इंतजार कर रही थी कि स्वामी विवेकानंद अब आते होंगे। जब स्वामी विवेकानंद उसके कमरे में गए तो फिर जो है उसका कमरा सारी जगह से वो लस्टफुल थी, वो गर्ल्स, मतलब लव तो वो बहुत दिन से कर ही रही थी, अब वो अपने फिजिकल डिजायर को नहीं रोक पा रही थी। और मतलब कि वो एक फिजिकल एपेटाइट थी उसके अंदर, एक फिजिकल एक एक्सट्रीम डिजायर थी उसके अंदर, और वो पहले से उसकी तैयारी करके रखी थी, सारे कमरे की खिड़कियां वगैरह बंद करके रखी थी। स्वामी विवेकानंद ने दरवाजा खटखटाया तो वो लड़की अकेले कमरे में उसका इंतजार कर रही थी, बड़ी शुद्ध बुद्ध खो करके। विवेकानंद उसके कमरे में पहुंचते ही उसके इरादे से अवगत हो गए, और उसके लिए यह एक चुनौती था कि कहीं आज मेरा ब्रह्मचारी व्रत तो नहीं टूट जाए। तो उसके बाद फिर जाते ही उसने वो दरवाजा बंद कर दी उस लड़की ने। स्वामी विवेकानंद और वो लड़की अब अकेले कमरे में, वह उसके करीब आई तो उसने विवेकानंद ने कहा कि बस तुम्हारा कहा तो मैंने मान लिया, अब तुम मेरा एक ही कहा मानो, इस टेबल पर एक कैंडल को सिर्फ जला दो, इतना अंधकार मुझे पसंद नहीं है। तो फिर उसने उस कैंडल को जला दी। बोला कि चलो, विवेकानंद इतना जल्दी एग्री हो गए, एक साधारण सा सर्फ कैंडल जलाना है, कोई बात नहीं है। कैंडल को उसने जला दी और स्वामी विवेकानंद उस टेबल के पास खड़े हो जाते हैं और लड़की उसे पीछे से पकड़ लेती है, और जितना उसको कोशिश है इसके अंदर जो मैनहुड है उसको जगाने का, डिजायर जगाने का, हर प्रकार की वो कोशिश करती है, पीछे से पकड़ करके, पीछे से उसको बांह डाले हुई है और चुंबन वगैरह उसको कर रहा है। लेकिन स्वामी विवेकानंद को किसी भी प्रकार का, देखती है वो लड़की की, किसी भी प्रकार का इनमें उत्तेजना नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे जो मतलब कि वो किसी भी प्रकार का उत्तेजना उसके शरीर में, जो जिसको कि हम इम्पल्स कहते हैं, ना तो कोई आउटर इम्पल्स ना तो कोई इनर इम्पल्स महसूस हो रहा था। बहुत देर तक ऐसा करने के बाद स्वामी विवेकानंद को उसने लड़की ने धक्का दे दी और स्वामी विवेकानंद जाकर के बगल में बेड था, उस बेड पर जाकर के गिर गए, जो बेड पहले से वो सजा करके रखी हुई थी। और जब स्वामी विवेकानंद बेड पर थी तो वो लड़की उसको हर प्रकार से, जितनी भी प्रकार की गालियां हो सकती है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, हर प्रकार से गाली देने के बाद ये भी कहती है कि आज तक दुनिया इस भ्रम में थी कि आप एक ब्रह्मचारी हैं, विवेकानंद एक ब्रह्मचारी है, लेकिन आज हकीकत सामने आई और इस हकीकत को मैं दुनिया के सामने रखूं कि आखिर विवेकानंद है कौन। असलियत तो यही है आपकी कि आप मर्द नहीं है। इस हकीकत को हम सबके सम्मुख रख देंगे कि स्वामी विवेकानंद जो है कोई मर्द नहीं है। इस मर्दानगी की कमी है स्वामी विवेकानंद में, और ये इस मर्दानगी को छुपाने के लिए ये ढोंग रखे हुए हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूं। इतना बोलते ही उसका नजर स्वामी विवेकानंद के पाम पर चला जाता है, हाथ पर, हथेली पर, और जैसे ही वह हथेली को देखती है तो पूरा हथेली विवेकानंद का जला हुआ था। अब जब पूरा हथेली वह जला हुआ देखती है लड़की तो आश्चर्यचकित हो जाती है, कहती है आपकी हथेली कैसे जल गया? तो वो बताते हैं कि जिस समय की तुम मेरे शरीर से खेल रही थी उस समय मेरा हाथ जो है कैंडल के आग पर, फ्लेम पर था, और चूंकि मैं इस आग की जो ज्वाला है मेरे हाथ को जला रहा था तो यह एक संवेदना हम महसूस कर रहे थे, जो अत्यंत ही तीव्र, बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था मुझे। इसलिए मैंने तुमने जो मेरे साथ की उसका तो मैंने एहसास ही नहीं किया। मेरा ब्रह्मचर्य व्रत नहीं टूटा है। तुम इस भ्रम में हो कि तुम सोच रही हो कि स्वामी विवेकानंद का ब्रह्मचर्य व्रत टूट गया, लेकिन स्वामी विवेकानंद कल भी ब्रह्मचारी था और स्वामी विवेकानंद आज भी ब्रह्मचारी है। तुमने मेरे साथ जो खेल खेली वो तुम्हारा निरर्थक किया, क्योंकि उस समय मेरा हाथ कैंडल पर था और मैं उस दर्द को, उस जलन को, की पीड़ा के कारण तुमने जो मेरे साथ जो कुछ भी की उसका कोई मैंने एहसास नहीं किया। धन्य है कि आज भी मेरा ब्रह्मचर्य व्रत नहीं टूटा। तो ये है स्वामी विवेकानंद, ये ब्रह्मचर्य व्रत है। कहानी तुमको समझ में आया? हेलो सर, इसमें से कौन कौन है? हुसैन? यस सर। हुसैन, तो ये कहानी तुमको हमको लग रहा है, तो दिस इज अ मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। ये एक योगी है
तो योग था। हाँ, तो मैंने क्या कहा तुमको कि ये साधना उस उम्र में संभव नहीं है। अगर ये हो जाए तब तो सभी विवेकानंद हो जाए, लेकिन एक ही विवेकानंद थे, दूसरा विवेकानंद फिर हुआ ही नहीं है और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एक अवतार थे। इसलिए जो योग होता है उसमें मैंने बताया कि पहले है ब्रह्मचर्य, वो नहीं हो सकता व्यक्ति से, ये अलग ढंग का साधना था। उतना मुकाम विवेकानंद को ही प्राप्त था, उस मुकाम तक तो अरविंदो नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि अरविंदो ने अपना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया था, क्योंकि उस उम्र में वो लंदन में थे और निश्चित तौर पर वहां के इमोरलिटी से वो अच्छी तरह से प्रभावित हुए होंगे। तो वो उसके अंदर कुछ ना कुछ इमोरलिटी, उनके अंदर कुछ ना कुछ इमोरलिटी आया होगा और कुछ ना कुछ काम तो वो किए ही होंगे। अंततः जो है उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। तो विवेकानंद एक योगी थे, एक महात्मा थे, और वो था एक ब्रह्मचर्य व्रत। और उनके अंदर जो ग्लोइंग आया था उसका राज इसी कहानी में छिपा हुआ है। वो ग्लो हासिल करने के लिए उस व्रत का पालन करना जरूरी होता है, जो कि विवेकानंद ने किया था, क्योंकि वही तुम्हारा जीवन है और वही तुम्हारा चमक है। इतना क्लियरली तो बता दिए, अब इससे ज्यादा नहीं। यू आर नाउ आर माई एल्यूमिन सेल्स। तो अब क्या है, इसके कारण कवि का जो सेल्स है, यानी कि बॉडी का जो सेल है, वो अब इल्यूमिन हो रहे हैं, उससे एक प्रकार का ग्लो निकल रहा है सेल्स से। और क्यों? क्योंकि अब स्पिरिचुअली इनलाइटेंड हो गया है और यह सेल्स जो इल्यूमिन हो रहा है, यह एक फ्लेम के रूप में जल रहा है अंदर में। और इस फ्लेम से क्या निकल रहा है? जॉयस फ्लेमिंग। जैसे कि इस बल्ब से प्रकाश निकलता है, उसी प्रकार से उनके शरीर के अंदर जो है आनंद अब फूट रहा है। एंड चेंज थ्रिल्ड। अब यहां पर कई प्रकार का एक्सप्लेनेशन हो जाता है। थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स अब चेंज कर दिए हैं। यहां पर मैंने कल बताया था, अगर हम ही चले आए इसको फिर से एक्सप्लेन करने के लिए, आई कैन एक्सप्लेन दिस लाइन इन 2 ways. As you are reading about the yogi experience of a yogi, so thrilling शब्द योगी के साथ तो नहीं लग सकता, यानी कि अब उनको थ्रिलिंग कैसा होगा? थ्रिलिंग का मतलब रोमांस, थ्रिल्ड का मतलब होता है रोमांचित, यानी रोमांस जैसे शब्द है उसी प्रकार से थ्रिलिंग भी है, रोमांचित हो उठना। यहां 2 मीनिंग है, या तो अब उनके नर्व्स जो हैं उस परम आनंद से रोमांचित हो रहे हैं, कभी यह कह रहे हैं एंड चेंज थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स। अब दूसरा यह है कि वो नर्व्स जो कभी थ्रिलिंग उत्पन्न किया करते थे, जो कभी रोमांचित हो उठता था किसी चीज के कारण, जो एक्साइटमेंट होता था यानी रोमांचित हो जाना, वो थ्रिलिंग नर्व्स जो कि कई ब्रांच में बटे हुए थे, वो अब चेंज हो गया है। नाउ देयर इज नो थ्रिलिंग, opposite meaning. One meaning is that the nerves is thrilled with the joy he has experienced through the medium of yoga or devotion or meditation. And the second meaning is that now those nerves which once used to thrill, वो नर्व्स जो कभी थ्रिल हुआ करते थे यानी कभी रोमांचित हो जाते थे किसी भी चीज के एक्साइटमेंट के कारण, टेम्पटेशन के कारण, इन सारी चीजों के कारण वो जो थ्रिल हुआ करते थे, वो नर्व्स अब उसमें किसी भी प्रकार का कोई थ्रिलिंग नहीं है, अब वो चेंज हो गए हैं। वो ब्रांचिंग नर्व्स क्या बन गए हैं? चैनल्स ऑफ रैप्चर्स। अब एक मार्ग बन गए हैं, चैनल्स। एक चैनल्स का मतलब होता है एक मार्ग, जैसे कोई चीज फ्लो होता है, वाटर जो फ्लो होता है इसे चैनल्स ऑफ वाटर कहते हैं। तो वो चैनल्स ऑफ रैप्चर, अब ये नर्व्स जो कभी थ्रिल हो जाते थे, किसी सामान्य घटनाओं से रोमांचित हो जाते थे, वो नर्व्स अब एक मार्ग में बदल गए हैं। किससे? रैप्चर्स। रैप्चर का मतलब होता है एक्सट्रीम जॉय। जॉय, हैप्पीनेस एंड रैप्चर हैज द सेम मीनिंग, बट इट इज द सुपरलेटिव डिग्री, मींस एट द एक्सट्रीम लेवल, मतलब परम आनंद। अब ये परम आनंद के मार्ग बन गए हैं। और कैसा? ये कैसा आनंद है? ये आनंद बिल्कुल स्वच्छ है, दूधिया, ओपल की तरह, व्हाइट कलर का। मैंने तुम्हें बताया था कि ओपल एक रत्न होता है जिसका मुख्य काम है आनंद देना जीवन में।
क्यों? क्योंकि वो सारे आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। वो हर प्रकार का मटेरियलिस्टिक प्लेजर देते हैं जो तुमको चाहिए। एक व्यक्ति को घर में सोफा, और तुमको 4 व्हीलर चाहिए, एयर कंडीशनर रूम तुम्हारे पास हो, तुम्हारे सामने टेलीविजन लगा हो, ये इसके लिए ये हो गया तुम्हारा मटेरियलिस्टिक प्लेजर। फिजिकल प्लेजर भी ये देते हैं, तुम्हारे अंदर अट्रैक्शन बढ़ाएंगे। ये ओपल स्टोन, सबसे पहले तो इसका इफेक्ट होता है कि ये अट्रैक्शन लाता है फेस में। अगर नहीं ला रहा है इसका मतलब यह तुमको सूट नहीं कर रहा है। इसका फर्स्ट इफेक्ट यही है, विद इन 45 डेज इट विल चेंज योर फेस, अट्रैक्टिव तुमको बनाए, अट्रैक्शन दे, हर प्रकार का सुख देने के लिए, सुख के लिए ही पाना जाता है। जैसे कि ये स्टोन एमेथिस्ट कहते हैं इसको। ये एमेथिस्ट जो होते हैं ये स्पिरिचुअलिटी के लिए है, क्योंकि ये शनिदेव के हैं। इसको पहनते ही तुम्हारा मार्ग बहुत कठिन हो जाएगा, कठिनाइयां बढ़ जाती है मास रास्ते में, और तुमको ये परिश्रम कराने लगेंगे, खूब परिश्रम, पूरा परिश्रम, और परिश्रम के अनुसार फल। क्योंकि हम जैसे कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तुम देखते हो कि हम जितना परिश्रम करेंगे उतना ही हमको प्राप्त होगा। हम तुमको पढ़ाते हैं बैच में, फिर बैच में, और क्या है कि वो परिश्रम से प्राप्त होता है, और ये स्पिरिचुअलिटी देता है, यानी कि सही कर्म की तरफ बोड़े। ये सब हार्ड है, इसमें किसी भी प्रकार का आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं, ये और तुम अपने आनंद को कम करने के लिए, एक प्रकार से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने के लिए, और अपने मार्ग को कठिन बनाने के लिए ये जानबूझ करके धारण किए। लेकिन वो पापल, वो माना जाता है कि एक ऐसा है रत्न जो कि लोग सुख के लिए पहनता है। हर प्रकार का सुख जो साधन होता है वो तुमको अवेलेबल हो जाए, और उसकी जरूरत होती है एक स्टेज में। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है अपना मतलब योगी बन जाए कि गिरवा में पहने, कि वो जीवन उसके लिए नहीं है। यू हैव टू इंस्ट्रक्ट प्लेजर फ्रॉम एवरी ड्रॉप्स ऑफ योर ब्यूटी। योर ब्यूटी सपोज बियॉन्ड द पावर ऑफ योर मॉरल ब्यूटी, नॉट ब्यूटी। यहाँ ब्यूटी का अलग अर्थ हो जाता है, लेकिन तुम्हें इंस्ट्रक्ट करना है प्लेजर। तो इस लाइफ में एक टाइम्स होता है जबकि योग की तरफ बढ़ता है। सब चीज की जरूरत है व्यक्ति को, हर प्रकार के सुख चाहिए, हर प्रकार से। बट द पोएट इज सेइंग दैट चैनल्स ऑफ रैप्चर्स नाउ नर्व्स व्हिच वाज यूज्ड टू थ्रिल। एक समय वो नर्व्स जिसमें कि थ्रिलिंग हुआ करता था, जिसमें कि टेम्पटेशन हुआ करता था, जो कि इंपल्स से प्रभावित हो जाते थे, जो अट्रैक्शन से प्रभावित होते थे, नाउ इट हैज चेंज्ड इनटू अ चैनल्स। अब ये एक मार्ग बन चुके हैं जिससे परम आनंद प्राप्त हो, ओपल एंड हाईलाइन। लेकिन यह हाईलाइन होंगे मतलब क्लियर लाइक स्काई, एक बिल्कुल स्वच्छ आनंद। और कैसा? बिल्कुल एक दुधिया व्हाइट, ओपल का कलर बिल्कुल व्हाइट होता है, बिल्कुल मिल्क कलर का होता है, व्हाइट, वो मिल्की व्हाइट, यानी कि यह एक आनंद है। और कैसा? बिल्कुल स्वच्छ आनंद, बिल्कुल प्रशस्त आनंद का यह मार्ग बन चुका है। फॉर द इनफ्लक्स, ऐसा लग रहा है कि इनफ्लक्स, इनफ्लक्स का मतलब होता है बाढ़, सडनली किसी चीज का प्रवेश कर जाना, दैट इज इनफ्लक्स, इनफ्लक्स ऑफ अ नॉन एंड सुप्रीम। और इस चैनल्स के जरिए क्या हो रहा है? एक बाढ़ की तरह उमड़ रहा है। कौन? ईश्वर, सुप्रीम, अननोन, उनका प्रवेश हो रहा है हमारे शरीर के अंदर मार्ग की तरफ। नाउ दिस वाज द ऑक्टेव। अब ये तो बता ही चुके थे, अब इसमें कुछ नहीं है 6 लाइन में इस आइडिया को एक्सटेंड, ये तो इफेक्ट हुआ। इन दीज 8 लाइन्स आई हैव टोल्ड यू दैट इन अ पेट्रार्कल सोनेट देयर आर 2 स्टेंजास। फर्स्ट इज नोन एज ऑक्टेव एंड द सेकंड इज नोन एज सेस्टेट। पहला ऑक्टेव और दूसरा सेस्टेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले कवि जो स्टेंजा में बता रहे हैं, तुम देखो क्या बता रहे हैं। कभी बता रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद किस प्रकार का चेंजिंग उनके शरीर में हुआ, लेकिन अब ये बताएंगे इसमें कुछ चेंज हो जाएगा थॉट। ये अपना फीलिंग बता रहे हैं कि कैसा वो फील कर रहे हैं, शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है उनको। लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ? ये जो मार्क्स बन गए, चैनल बन गए हैं, जिसके जरिए ईश्वर प्रवेश कर रहे हैं, ईश्वर का प्रवाह हो रहा है उनके अंदर। जिस प्रकार से प्रत्येक शरीर के हर भाग में, हर कोशिकाओं में
वह एक दैवीय शक्ति का महसूस कर रहे हैं और इल्यूमिनेट हो चुके हैं उनके प्रत्येक सेल, जिससे कि फ्लेम निकल रहा है ज्वार का। बट इफेक्ट क्या, अब है क्या, इसका क्या इफेक्ट हुआ? यदि मेरा सोल इल्यूमिनेट हो जाए, आई एम नो मोर ए वेसल ऑफ फ्लेश। तो इफेक्ट क्या हुआ? अब वो गुलाम नहीं रह गए फ्लेश का। देखो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आंख, आईज, नोज, ईयर, टंग एंड व्हाट यू से स्किन। ये सेंस ऑर्गन्स हैं। आंख से कोई चीज देखते ही किसी भी प्रकार का मन में टेम्पटेशन हो जाना, कान से कुछ सुनते ही, गाना सुनते हैं हम लोग तो एक अलग प्रकार का फीलिंग होता है, रोमांटिक हो जाता है मूड। कोई विस्परिंग साउंड में कुछ बोले तो भी वह एक प्रकार से अलग इफेक्ट करता है। अगर कोई विस्परिंग साउंड में तुमसे बात करे तो उसका एक अलग इफेक्ट होगा जब वह जाएगा कान के अंदर। अलग अलग प्रकार की ध्वनियां अलग अलग प्रकार का इफेक्ट करता है शरीर के अंदर। ये तो तुम जानते हो, कोई गुस्सा में बोलेगा हम क्रोधित हो उठेंगे, कोई जोर से बोलेगा हमें क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, कोई दया की भावना से बोलेगा तो हमें उसके ऊपर दया आ जाएगी। उसी प्रकार से साउंड पर भी डिपेंड होता है। साधारण सी बात है कि तुम जब गाना सुनते हो तो तुम रोमांटिक होते हो, अगर वह रोमांटिक गाना है तुम्हारा मूड चेंज हो जाता है, और उसी मूड को चेंज करने के लिए तो हम अपने गाना को सुनते हैं। तो ये जो ईयर है ये एक सेंस ऑर्गन, उसी प्रकार से आईज होता है, उसी प्रकार से टंग, जीवा, स्वाद लेना, इसी प्रकार से त्वचा, स्किन, स्मूथनेस, इससे टच करके हम फीलिंग उत्पन्न कर सकते हैं हमारे शरीर में। ये लेकिन सबका फाइनल क्या होता है? फाइनली इसका इफेक्ट है कि प्राइवेसी ऑफ फ्लेश ओवर यू। ये फाइनली जाकर के फ्लेश पर ही इफेक्ट डालता है, फ्लेश पर। फाइनली सब ये सारे जो ये सेंस ऑर्गन्स हैं ये किसी न किसी तरह से फ्लेश को इफेक्ट करते हैं। चाहे तुम आंख से कुछ देखो तो कोई ना कोई तो इंपल्स तुम्हारे अंदर जगेगा, कुछ तो तुमको आउटर इंपल्स स्पष्ट तौर पर तुम अपना बॉडी में चेंजिंग देख लोगे। और कुछ इनर इंपल्स होते हैं, ब्लड को हॉटनेस वगैरह, डिजायर उत्पन्न करना, ये सारा चीज फाइनली उसी को उत्पन्न करते हैं। बट नाउ द पोएट सेज आई एम नो मोर द स्लेव ऑफ फ्लेश। अब मैं फ्लेश का स्लेव नहीं हूं, मैं अब गुलाम नहीं हूं अपने मांस का, अपने शरीर का, कि हमारा शरीर कुछ डिजायर कर रहा है और हम उसे जैसे ना तैसे पूरा करेंगे ही, क्योंकि हम आदमी गुलाम है फ्लेश का। वो कुछ डिमांड करता है और उसके लिए क्या नहीं कर देता है उसे हासिल करने, क्योंकि वो उसका गुलाम है। कई लोग तुम देखते होंगे कि गलत कर्म के कारण जीवन पर्यंत जेल में रहते हैं, कई को तो फांसियां मिल जाती है, कई लोग तो फिर धीरे धीरे ऐसे मकर जाल में फंसते हैं कि लाइफ खत्म, पढ़ाई लिखाई चौपट, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? कि वो गुलाम हो चुके हैं फ्लेश का। वो अपने बॉडी के डिजायर को पूरा करेंगे किसी ना किसी तरह से। बट द पोएट सेज आई नो मोर, आई एम नॉट सच टाइप ऑफ पर्सन नाउ। अब मैं ऐसा व्यक्ति नहीं रह चुका हूं, अ वेसल ऑफ फ्लेश हु मे बी कॉल्ड अ स्लेव ऑफ द बॉडी। नो, आई एम नो मोर द स्लेव ऑफ द बॉडी। मीनिंग को समझो, कॉपी को सामने रख करके मैंने तुम लोगों को कहा है कि लिख करके रखो, एक एक लाइन का अर्थ समझो। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम and you are not observing, then you must ask me. I will make again it clear कि what actual is the meaning of the line. हमें तो पूरा उम्मीद है कि एक एक लाइन को तुम लोग समझ चुके होगे, कि नहीं समझ रहे हो? कोई जवाब दो। किसी को प्रॉब्लम है किसी भी लाइन में? नो सर। एक एक लाइन बहुत क्लियर हो रहा है, क्योंकि एक एक लाइन पर हम 15 मिनट 10 मिनट बोल रहे हैं। तो आई नो मोर अ वेसल of place, no, I am no more the slave of the body. A slave to nature. Again, इस लाइन में भी कंट्रोवर्सी है। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पढ़ना कहीं पर बुक में या अलग अलग स्कॉलर्स ने जो कहा है इसमें भी कंट्राडिक्टरी है। और खुद जो मैंने लिखाया है, मैंने कहा था कि उस नोट्स को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, खुद मैं उसको चेंज करूंगा। अब क्योंकि दोनों लाइन में पोएट क्लियर नहीं करते, इसलिए तो पोएट को लायर बताए थे। अब देखो कहते हैं आई एम नो मोर ए वेसल ऑफ फ्लेश, ए स्लेव टू नेचर।
slave to nature. Here I have dictated you. The poet says that now I will obey only nature. उल्टा करके देख लेना नोट्स को. कुछ लोगों का मत है, बट आई एम नॉट. मैंने कहा था कि ये मेरा नोट्स जो है थोड़ा सा इफेक्टिव है, थोड़ा सा बुकिस है, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले बनाया था. चेंज करना था इसको. अपना नॉलेज मेरा बढ़ा तो हम इसको अपने ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बुकिस है और वो कहीं ना कहीं गलत था. मैंने जहां से लिखा है मैं चेंज करवाऊंगा उसे. कहते हैं स्लेव टू नेचर. एक्चुअली कवि कह रहे हैं यहां पर आई एम नो मोर अ स्लेव टू प्लेस. अगेन आई एम नो मोर ए स्लेव ऑफ नेचर. मैंने नोट्स में लिखाया है कि अब हम स्लेव हैं किसके? नेचर के. यानी जस्ट अपोजिटिवली, और सब जगह यही मिलता है, लेकिन जब पढ़ोगे तो slave to nature. Now I am slave, no more slave of body, but slave of nature. But no, slave of nature भी नहीं आना है. slave of nature तो और खराब हो गया, नेचर का गुलाम हो जाना. क्यों? क्योंकि नेचर इफेक्ट करता है मैन को. मैन भले उससे थोड़ा कम प्रभावित हो, क्योंकि थोड़ा उसको अकल है, इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है ऑर्डिनरी मैन पर नेचर का. अगर नहीं इफेक्ट रहता तो तुम देखो कि कोई भी बीइंग रहे, चाहे एनिमल भी रहे, तुमको इस महीने में पप्पी दिखाई पड़ेंगे, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे. अब तुम उस बच्चे को कभी हमको दिखाना मई महीना में नहीं नजर आएंगे, कभी नहीं. एक खास मंथ होगा जब तुमको कौवे के बच्चे नजर आएंगे, एक खास सीजन में नजर आएंगे. क्यों? क्योंकि वो वास्तव में ऐसे जानवर हैं जो नेचर से बहुत ज्यादा इफेक्ट है. चेंजिंग नेचर उसके अंदर एक प्रकार का डिजायर उत्पन्न कर देता है, जिसे कि वह नहीं रोक सकता है. बॉडीली डिजायर और रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. मैन इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय नेचर, कॉमन ह्यूमन बीइंग. प्रकृति का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है व्यक्ति के ऊपर. प्रकृति एक खास प्रकार का वातावरण, एक खास प्रकार का मौसम व्यक्ति को एक खास कार्य करने के लिए आमंत्रित करता है. जितने भी बुरे कर्म होते हैं मैक्सिमम वो नाइट के टाइम में होता है, चाहे वह चोरी ही क्यों ना हो. और यह क्या है? डे एंड नाइट. इट इज नेचुरल फेनोमेना. नेचुरल फेनोमेना. ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स पर्सन. Everyone is affected by nature. नेचर के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अफेक्ट हो गए हैं. नेचर का एक ग्रेट इंफ्लुएंस रहता है ऑर्डिनरी बीइंग पर, कॉमन ह्यूमन बीइंग पर. फायर करता है व्यक्ति. चेंजिंग वेदर हर एक प्रकार का इंस्पिरेशन लाता है. ये जो हवाएं चलती है, ईस्ट विंड, वेस्ट विंड, नॉर्थ विंड, साउथ विंड, अलग अलग प्रकार की डिजायर उत्पन्न करते हैं शरीर में. चाहे पूर्व दिशाओं से चलने वाली हवाएं एक अलग डिजायर उत्पन्न करते हैं बॉडी में. पश्चिम से चलने वाली हवाएं एक अलग डिजायर उत्पन्न करते हैं. जब हवाएं पछिया चलती है तो बिना किसी वजह का तुम प्रसन्न हो जाओगे. कभी तुम महसूस करना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम खुश क्यों हैं. तुम कभी अनुभव करना वेस्ट विंड आ रहा है, उसके पीछे एक साइंस है. कभी कभी तुम उदास हो जाओगे, तुम्हारे शरीर में दर्द उत्पन्न होगा, अकड़न उत्पन्न होगा, फ्लेश, ईस्ट विंड के कारण. तो क्या नेचर से बॉडी इफेक्ट नहीं है? यस. तो ये लाइन गलत ढंग से एक्सप्लेन किया गया है सबके द्वारा. कभी कहना चाहते हैं कि नो मोर स्लेव ऑफ प्लेस. आई एम नो मोर स्लेव ऑफ नेचर एज वेल. आई एम अनअफेक्टेड बाय चेंजिंग वेदर, बाय चेंजिंग नेचर. Nature, even nature cannot affect me as I am a yogi. But just positively हर जगह लिखा हुआ है, मैंने भी लिखाया है. तो इसको याद रखना कि कभी कह रहे हैं कि I am unaffected by changing weather, season, nature and natural phenomenon as I have now become a yogi. Now nature cannot affect me. Now nature cannot create any desire within me. किसी भी प्रकार का डिजायर अब हमारे अंदर या नेचर नहीं कर सकता. प्रकृति से भी मैं अब परे हूं, प्रकृति का भी मैं अब गुलाम नहीं हूं. एंड आर लीगल रूल्स एंड लीगल रूल्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स.
देयर आर सो मेनी रूल्स क्रिएटेड बाय नेचर। अब इसको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसको सीधा आर्थिक अर्थ समझा देते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है। भाई भरकम नियम, कभी देखना लीजन रूल, कभी गूगल्स में दो तरह का रूल्स है, एक गोल्डन और एक लीजन। हमें गोल्डन रूल को फॉलो करना है, लीजन रूल को नहीं। साधारण सा बता देते हैं गोल्डन रूल का, हमें किसी के साथ ऐसा नहीं करना है जो हम अपेक्षा नहीं करें कि दूसरा मेरे साथ करे। ये गोल्डन रूल हुआ। अपोजिट होता है इसका लीजन रूल। हम उसके साथ वो कर देते हैं जो कि हम अभी नहीं चाहेंगे कि मेरे साथ कोई ऐसा करे। जस्ट पॉजिटिवली इट इज इविल्स इन आवर नेचर। ये हमारे नेचर में एक प्रकार का इविल है। दो रूल्स है, एक लीजन और एक गोल्डन। बहुत से नियम है। एक गोल्डन रूल्स, उदाहरण के तौर पर मैंने बताया कि तुमसे कोई झूठ बोलेगा तो तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा, हमको इतना झूठ बोल दिया, हम मेरे साथ इतना बड़ा छल कर दिया, और तुम साधारण ढंग से उस व्यक्ति के सामने झूठ बोल देते हो, छल कर देते हो। ये नहीं सोचते हो कि उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो यू आर जस्ट अपोजिट टू द गोल्डन रूल्स that you have to do with the person only those things which you expect from him to you. This is the one rules. Similarly, ego, passion, सब उसी रूल्स के कारण है। अगर इस रूल्स को हम समझ लें तो हमारे अंदर ईगो खत्म, हमारे अंदर पैशन खत्म। I will explain. I am caught no more in the senses narrowness. मैथ्स का मतलब होता है कि ट्रैप, नैरो मतलब होता है सकड़ी। अब मैं सेंस के जाल में नहीं हूं। सेंस को मैंने अभी क्लियर किया कि सेंसेस क्या होते हैं, 5 सेंसेस होते हैं। वो जाल बिछा देते हैं और उसमें व्यक्ति फंस जाता है। सेंस के जाल में व्यक्ति बिल्कुल फंस जाता है। मतलब कभी कभी व्यक्ति कुछ ऐसी चीजों को देख ले, ऐसा दृश्य उसके सामने आ जाए कि मतलब कि जैसे कि मान लो कि गोलगप्पा को देखेंगे तो जी से तो पानी आएगा ही, निश्चित है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैक्सिमम व्यक्ति एक्सपीरियंस कर सकता है कि कहीं गोलगप्पा बिक रहा है और उसको हम जैसे ही देखते हैं तो हमारे जी में पानी आ जाता है। अब सोचो तुम किस तरह का जाल बिछा हुआ है। तुमने आंख से गोलगप्पा देखा, तुम्हारे मुंह में पानी आ गया और तुमने फिर खा लिया और फिर बाद में तुमको उससे हानि हो गया। ये बड़ा विचित्र जाल है, इसे सेंसेस नैरोमेंस कहते हैं। उसको देखते ही आप जी में पानी आ जाना और जी में पानी आते ही गोलगप्पा को खा लेना और गोलगप्पा के खाते ही कई प्रकार की बीमारियों को आमंत्रित कर देना, क्योंकि गोलगप्पा वाला हाथ डुबा रहा है और गोलगप्पे में उसके हाथ में बहुत से बैक्टीरिया है, बहुत से वायरस हैं और वो तुम्हारे शरीर के अंदर जा रहे हैं। मोस्ट पॉसिबिलिटी है तुम उससे सफर करोगे, डिजीज तुम्हारे अंदर होगा। अब ये मैंने एक उदाहरण दिया कि गोलगप्पे को देख करके जी में पानी आ जाना, फिर गोलगप्पे को खा लेना और फिर बीमार पड़ जाना। अब अगर तुमको थोड़ा भी अकल है तो तुम समझ सकते हो कि हम क्या कह रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि तुमको प्रलोभित करता है, जो कि तुमको टेम्पटेड करता है और तुम उसको करने के लिए प्रेरित हो उठते हो और तुम कर लेते हो और रिजल्ट उसका बैड हो जाता है। तो पोएट कहते हैं नो नो माय सो आई एम काउट नो मोर, नहीं कर सकता हूं मैं। किसमें? इन द सेंसेस नैरोनेस। ये सेंस जो है, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इस ज्ञानेंद्रियों के जो मकरजाल हैं, महीन महीन जो जाल बिछा कर रखे हैं, इस जाल में अब मैं फंसने वाला नहीं हूं। और किस तरह का जाल है मैंने एक उदाहरण देकर के तुमको एक्सप्लेन किया कि बड़ा विचित्र जाल होता है। सिर्फ आंखों से किसी चीज को देख लेना, बुरे चीजों को, वह तुम्हारे जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। सिर्फ कान से कुछ बुरा चीज सुन लेना, वो तुम्हारे जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। सिर्फ हाथों के त्वचाओं से किसी बुरी चीज को स्पर्श कर लेना, वो तुम्हारे अंदर एक प्रकार का बहुत बुरा असर ला सकता है। ये कविताएं मैंने बताया योगाश्रम के लिए है, जो 4th है पीरियड्स, उसे तुम इस टाइम से कंपेयर मत करो। माय बॉडी, so my soul unhorizoned wires to measureless sight। अब मेरा सोल जो है ना, आत्मा, वो कोई छोटा सा संकीर्ण आत्मा नहीं रह गया। अनहॉरिजॉन्ट, ये क्षितिज से ऊपर है, धरातल पर से बहुत ऊपर उठ चुके हैं।
मतलब अर्थली थिंग से ये अब अवे हो चुके हैं, अब अर्थली थिंग से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वाइडेंस फैल चुके हैं, विस्तीर्ण हो चुके हैं। ये मेरी आत्मा मेजरलेस साइट कितनी ऊंचाई को हासिल कर चुके हैं, उस ऊंचाई तक चले गए हैं मेरी आत्माएं, जो कि यहां से नजर ना लगी। यानी अब स्पिरिचुअल जो हम हो चुके हैं, सो मेरी आत्मा इस क्षितिज से, क्षितिज पर नहीं है, इस क्षितिज से ऊपर, बहुत ऊपर उठ चुका है। आत्मा सोल का ऊपर उठना मतलब मेरे विचार जो है अब ये मामूली नहीं रह गए हैं, ये बहुत उच्च हो चुके हैं। माई बॉडी इज गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल एंड माई बॉडी हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू ए टूल। और यह मेरा शरीर जो तुम देख रहे हो, यह एक हथियार बन चुका है। किसका? गॉड का। हैप्पी, और इस हथियार से गॉड क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे हैप्पीनेस। ईश्वर को हैप्पीनेस अगर उत्पन्न करना है, हैप्पीनेस, प्रसन्नताएं, उस प्रसन्नता को उत्पन्न करने के लिए, उस प्रसन्नता आनंद को सृजित करने के लिए ही अब मेरा शरीर है। मेरा शरीर अब मेरा नहीं है, अब यह गॉड का हो चुका है। गॉड का यह टूल्स है। अब गॉड चाहे इसे जिस रूप में उपयोग करे। मैंने तुम्हें बताया कि सबके पास टूल्स होता है, जैसे कि यह जो हम तुमको ये टूल्स है, जो हम कान में ईयरफोन लगाए हैं और माइक यहां लगा हुआ है, ये जो तुम्हारे सामने में कैमरा लगा हुआ है, यह एक टूल्स है, एक साधन है। इस साधन से हम एक काम कर रहे हैं कि तुमको पढ़ा रहे हैं। बढ़ई आता है कारपेंटर, घर में अपने साथ छेनी बसुल्ली लेके आता है, वह उसका टूल्स है। उस टूल से वो क्या करते हैं? उस टूल से वो फर्नीचर बना सकते हैं, तुम्हारे घर के चौखट दरवाजाएं बनाते हैं। उसी प्रकार से जिस तरह से कि छेनी बसुल्ली एक कारपेंटर के लिए एक हथियार है जिससे कि वो बनाते हैं फर्नीचर, उसी प्रकार से अब मेरा जो शरीर है यह एक हथियार बन चुका है, एक टूल्स बन चुका है, एक युक्ति बन चुकी है। किसके लिए? गॉड के लिए। एक युक्ति कैसी? इससे क्या उत्पन्न होगा? आनंद। मैं अब आनंद बिखेरने के लिए हूं। मैं आनंद कैसे? कवि क्या कह रहे हैं? साधक बताएंगे अब लोगों को कि तुम कैसे साधना करोगे, तुम कैसे मेडिटेशन करोगे जो तुमको परम आनंद मिलेगा। और ये जो बोल रहे हैं हम, ये कौन बोल रहा है? मेरे अंदर तो ईश्वर है। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे? ये भी कह रहे हैं, नाउ आई विल प्रीच सरमन्स। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं सरमन्स दूंगा। अब वो योग गुरु बन चुके हैं और उस सरमन्स में मैं सिखाऊंगा मेथड्स ऑफ मेडिटेशन थ्रू विच यू कैन अचीव परम आनंद। आई विल टेल यू द वे हाउ यू कैन गेट नारायण दर्शन। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें ईश्वर से दर्शन कैसे हो जाए। मैं तुम्हें नारायण का दर्शन कराऊंगा। आई विल टेल यू, आई विल डिस्क्राइब यू, आई विल प्रीच सरमन ऑफ सच्चित जो आनंद, सच्चिदानंद। तुम्हारा चित्त जो है वह शुद्ध कैसे हो जाए। सत्य मतलब होता है सही, शुद्ध। शुद्धि कैसे प्राप्त करे तुम्हारा चित्त, और उस शुद्धि से तुमको कैसे आनंद प्राप्त होगा जो कि परम आनंद होगा, सच्चिदानंद। उसका उनका फिलॉसफी है, बहुत से फिलॉसफी दिए हैं इस पोएम के बाद। सो आई विल प्रीच द सरमन्स ओनली, आई विल टीच यू द वे हाउ यू कैन अचीव परम आनंद। आई विल टीच यू, आई विल मेक यू लर्न हाउ यू कैन हैव नारायण दर्शन। I will describe you what is the meaning of सच्चिदानंद, what is सत जोड़ चित्त जोड़ आनंद। किस तरह से तुम अपने चित्त को शुद्ध करो, चित्त मतलब होता है मन, और किस तरह से तुम आनंद को प्राप्त करो, परम आनंद को प्राप्त करो। इसीलिए कवि कहते हैं क्या, माई बॉडी इज गॉड हैप्पी लिविंग टूल, लिविंग टूल। अब एक जीता जागता हथियार, एक युक्ति मेरा शरीर बना है, और इससे क्या उत्पन्न किया जाएगा? आनंद को प्राप्त किया जाएगा। माई स्पिरिट ए सन, और यह मेरा स्पिरिट, यह आत्मा जो है यह क्या है? एक सूर्य के समान है, वास्ट विस्तीर्ण हो चुका है सूर्य के समान। और वह क्या करेगा? और बेसलेस लाइट, और अब वह सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश देंगे। जो व्यक्ति अंधकार में है और उस अंधकार के कारण जो परम दुख में चले गए हैं,
जो कि अत्यंत दुखी है, और उसके दुख का एकमात्र कारण क्या है? उसके अंदर का अंधकार। वो जगह नहीं है, वो अंधकार में है, उसे पता ही नहीं है कि उसके दुख का कोई और कारण नहीं है, अपने दुख का वही कारण है। मैं उन्हें प्रकाश दूंगा, मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम अपने अंदर के दुख को कैसे कम कर सकते हो, और कौन से कारण है जिससे कि तुम दुखी हो जाते हो, तुम्हें क्या नहीं करना है जिसके कारण तुम दुखी नहीं होगे। तो कवि क्या कहते हैं लास्ट लाइन में? माई स्पिरिट अ वास्ट सन, नाउ माई स्पिरिट हैज बिकम अ वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट। डेथलेस इंग्लेस लाइट, सन में जो लाइट है वह डेथलेस है, हमेशा, कभी डीजल और पेट्रोल नहीं है उसमें जो कि खत्म हो जाएगा। वैसे तो बाद की बात है कि एक प्रक्रिया है नाम की संलयन की प्रक्रिया, उससे उष्मा उत्पन्न होती है। वैज्ञानिक कहते हैं एक समय में करोड़ों अरबों वर्ष बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरा वैज्ञानिक कहता नहीं, उसके विपरीत भी एक प्रतिक्रियाएं होगी, चलती रहेगी, यानी असीमित तक। जब तक धरती है तब तक यह सूर्य रहेंगे, और जब तक सूर्य रहेंगे तब तक प्रकाश ही प्रकाश रहेंगे, और चाहे कभी यह खत्म होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल सही साबित हुआ। कौन? अरविंदो ने पांडुचेरी में एक योगाश्रम खोला है, तुम्हें मैंने बताया, और उस योगाश्रम के पहले गुरु थे अरविंदो घोष, और उसके बाद उनके मरने के बाद वहां पर गुरु, कोई ना कोई गुरु बनते रहते हैं, वो पद खाली नहीं होता है मठ का, वहां गुरु है और बहुत से शिष्य है। लोग वहां जाकर के, मतलब तुम चाहो तो तुम वहां रह भी सकते हो, तुम अपना घर द्वार त्याग करके चाहो तो पांडुचेरी में तुम रह सकते हो, तुम्हें आश्रम में जगह मिल जाएंगे, और वहां पर योग साधना किया जाता है, योग विद्या हासिल करते हैं। तुमको हम योगी बनने नहीं बोल रहे हैं, पांडुचेरी चले जाओ। every stage has its own way you have to live. This is the final stage, योग। मैंने बताया ये चौथा चरण है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो इस प्रकार से यह कविता है, बट दिस इज द line analysis of the line, explanation of the line, but there is merit in the poem. Every line has some aesthetic beauty, इस moral beauty तो है, moral तो ये बहुत श्रेष्ठ दे रहे हैं कविता, लेकिन इसमें एक और beauty है कविता में। एक तुम जान चुके हो, दिस इज sonnet, this is not all, and the rhyme scheme is abba abba and c d e d e, इस प्रकार से rhyme scheme है, but every line has metaphor. This is the beauty. My spirit, a vast sun. So here, spirit is compared to sun. My spirit, a vast sun. This is metaphor in the line of deathless light. Sun भी और soul भी deathless है, आत्मा अमर है, और सन में जो लाइट है वो भी डेथलेस है। So how apt is this metaphor? कितना उपयुक्त है यह मेटाफर। देखो, मेटाफर मीन्स टू ऑब्जेक्ट इज कंपेयर्ड एंड द क्वालिटी ऑफ वन इज इम्पोज्ड टू द क्वालिटी ऑफ अदर। हाउ ब्यूटीफुली दिस क्वालिटी कैन बी इम्पोज्ड हियर। इट इज द मेरिट, इट इज द ब्यूटी ऑफ द पोएम। कितनी अच्छी तरह से इसमें एक में दूसरे का गुण दिखाया गया है। सन इज कंपेयर्ड टू सोल। सन इज ऑल्सो डेथलेस and soul is also deathless. Sun is the source of light, and also here the soul of Aurobindo is the soul of light. Light means प्रकाश, मतलब खुशियां, आनंद। अंधकार मतलब बुराइयां, दुर्गुण। मैंने बताया कि जितने भी दुर्गुण बुरा काम है सब तो रात में होता है, और जितने भी अच्छे काम है सब दिन में होते हैं। जरूरी नहीं है कि दिन में से वो अच्छे ही होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बुरे कार्य हैं वो रात्रि के समय ही हुआ करते हैं। तो अंधकार जो है निगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जहां निगेटिविटी के लिए आता है वहां लाइट पॉजिटिविटी के लिए आता है। तो इन द लास्ट लाइन, माय बॉडी गॉट हैप्पी लिविंग टूल। हियर बॉडी इज कंपेयर्ड टू द टूल। बॉडी का प्रयोग टूल से किया गया। कोई भी टूल नहीं टिकता है, खत्म हो जाता है। काम करते करते छेनी बसुल्ली ठोकते ठोकते खत्म हो जाना है। बॉडी भी उसी प्रकार का है। फिर कंपेयर, टूल का उपयोग किसी चीज के निर्माण के लिए होता है, और शरीर बॉडी जो है वो भी कभी उपयोग, गॉड इसका उपयोग करेंगे।
जब तक जिंदा रहेंगे अरविंदो तब तक वो प्रवचन देंगे, सरमन देंगे, और इस सरमन से लोग अपनी बुराइयों को दूर करेंगे, योग विद्या को हासिल करेंगे, और योग विद्या को हासिल करने के बाद वो सारा चीज अनुभव करेंगे जो मैंने इस पोएम में, जैसा कि अरविंदो ने बताया ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। दिस इज द पोएम एनालिसिस ऑफ एवरी लाइन इन द पोएम। आई हैव डिक्टेटेड यू क्वेश्चन आंसर, you will have to prepare for examination. If you can change, then there are some things which I was tending to change in the notes, but I could not, but you must change. The poet says that one narrow masculine कहते हैं, he is no longer just a slave of the place. अब place के slave नहीं है, he is also no longer the slave of the nature. जहां पर लिखा है notes में कि now he is the slave of nature, उसको काट करके लिख दो। Now he is no longer even the slave of nature. मैंने बताया कि slave of nature का मीनिंग क्या होता है। नेचर का तो गुलाम सब कोई है, नेचर का गुलाम सब है, सब नेचर से प्रभावित होता है, और प्रकृति से प्रभावित ना हो तभी तो हम कुछ खास हो सकते हैं। प्रकृति से कौन प्रभावित नहीं है? प्रकृति से तो सब प्रभावित है। प्रकृति का प्रभाव किसके ऊपर नहीं है? एवरीवन इज अफेक्टेड ऑफ नेचर। प्रत्येक व्यक्ति का नेचर पर इफेक्ट है। अभी ठंडा मौसम है, इसका हमारे शरीर के ऊपर एक इफेक्ट है। गर्म मौसम, उसका शरीर के ऊपर एक इफेक्ट रहता है। सो एवरीवन ऑफ अस इज नो डाउट अफेक्टेड बाय नेचर। सो हियर द पोएट मीन्स टू से दैट नाउ ही इज स्लेव ऑफ द बॉडी, नाउ ही इज द स्लेव ऑफ नेचर एज वेल। नाउ he is, what is the line? Spirit, body is God's spirit. Now he is a man upon the endless beauty and blessing that God provides. अच्छा, इसको मैं कर दूंगा चेंज। तो तुम लोगों को यह पोएम समझ में आ गया है कि कर सकते हैं? पता हम पूछ रहे हैं, उर्सी समझ में आया? उर्सी is not present. I can see that you are present, but Present, sir. are you? Good evening, sir. So good evening. Are you listening to me? Yes, sir. Did you were you present all the times I explained the line of the poems from beginning to the end? Yes, sir. Actually, I joined the class by 20 minutes late, sir. 20 minutes late. After 20 minutes, you were present continuously? Yes, sir. I was there and I was listening. Okay. Next, मोहम्मद मकसूद, समझ में आया तुमको पोएम? मकसूद? हाँ सर। कहीं कोई प्रॉब्लम? कोई भी लाइन में प्रॉब्लम? सर नहीं, अच्छा समझ में। हाँ सर ठीक है, कभी कभी नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा था थोड़ा सा। स्वामी? यस सर, समझ में आ गया सर। कोई भी लाइन में प्रॉब्लम नहीं ना है? नो सर। किसी भी लाइन? ठीक। सपना, आर यू प्रेजेंट? सपना कुमारी, तुमको समझ में आया? पोएम समझ में आ गया? Nothing, sir. Did you observe the line, meaning of the lines of the poem? No, sir. क्या तुम्हें कभी तक नो पॉइंट समझ में नहीं आया? सर आप क्या प्रॉब्लम है? आपने समझाया, बट मेरे पास अभी वो लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने मैसेज किया था कि सब व्यक्ति को लिख करके रखना है पोएम को। जब हम पढ़ाएंगे तो तुमको लाइन लिख करके बैठना है। तो तुम लाइन लिख करके नहीं बैठोगे तो समझ में कैसे आएगा? यस सर, सॉरी। उसके बाद देखो, अच्छा नेक्स्ट टाइम। अनिशा, समझ में आया तुमको कि नहीं? साबा, प्रेजेंट हो कि नहीं ये हम देख रहे हैं। समझ में तो सबको आया ही होगा, अब नहीं समझ में आएगा तो कोई समझा पाएगा तुमको। अगर ये कविता तुमको समझ में नहीं आए यहाँ पर तो समझ लो कि इसको कोई नहीं समझा सकेगा। हुसैन, समझ में आ रहा है ना?
रोशनी भी प्रेजेंट है क्या क्या बोले? इसमें अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम। रोशनी तुम प्रेजेंट थी? मतलब नहीं तो अभी लास्ट वाला समझ में आया सर। रोशनी यस सर। आवाज क्लियर था मेरा? प्रिया और प्रिया प्रिया कुमारी आर यू प्रेजेंट? यस सर। पायल कुमारी, पायल तुम भी तो प्रेजेंट थी? यस सर। ठीक, यहाँ पर ओनली 11 स्टूडेंट प्रेजेंट थे और लगभग 11 स्टूडेंट गायब थे। 22 out of 22, only 11 are found present, and I am missing 11 students. I can't say why they were absent. I had announced that I will engage the class from 8 o'clock. I have announced, and I am also at the time. But even though I found that so many students are absent, so probably there will be no class tomorrow, yesterday, or on Monday I will be live. Monday you have your class from 8 o'clock. So sorry, from 9 o'clock offline class, and in online class I will be present here at 8 o'clock. Probably I will inform you if I will be present here for online class. I will give you a formal announcement in the WhatsApp group. Then you will have to be present here. Okay? We have already read the way of the world, and I have also completed here today teaching you transformation. This was the most complicated poem because I found that many of the lines in the poems have been explained by many of the scholars in different ways. So this was the most complicated poem, and the students of your age especially will not be able to observe what the poet is really wanting to convey you, because it is not in your power, in your capacity that you can feel all those things what the poet wants to make you feel. So there are some things of which you are completely unaware, but you should not be. You have grown much matured. Whatever may be, I observed that this was the most complicated poems in your syllabus, and this is the reason that first I explained transformation. The other of the poems are not so difficult, are very easy poems. Whether you read Where the Mind is Without Fear, or you read by Rabindranath Tagore in Gitanjali, this is a very famous poem, Where the Mind is Without Fear. Where the Mind is Without Fear. So this is important point. Probably I will teach you this one by Rabindranath Tagore. And there is another, and one of the important poems, or the difficult poem, it is by Kamla Das. Kamla Das, Introduction. Also very interesting poem. I will explain you all the poems prescribed for you in the syllabus. There are 6 or almost 5 or 6 poems in 602, sorry, probably 602 unit 2 Indian English poetry, where all the poems you will find back written by Indian English poets. They all are very interesting poems, and they are great. They have great messages. Some of the poems are very patriotic in themes, like the poems by Atal Vijayajo, To India, My Native Land, with which I had started my online class, is a very patriotic feeling. And again, Where the Mind is Without Fear is also a patriotic poem. Here, this was a spiritual poem. Here, the poet comes with some spiritual message to you. And again, Introduction by Kamla Das. You know that Kamla Das's poems is very much sensuous poems, because he had chiefly written. She is one of the greatest English poets, but her married life was not happy one. He was not satisfied with his husband. Probably his husband was suffering from some disease, and you will find that his poem is full of sensuousness. There are the themes of relationship between man and woman in the poems by Kamla Das. But whatever may be, Kamla Das has written about the real experience in his life. It is a type of, you may say that poems of Kamla Das is the autobiography of Kamla Das. What actually he has felt, he had described it. She has described in the poem. She has also described in the poems when she was a girl of 16 years how a boy had behaved with him in the close
rooms, and how, and from that after day she decided to get her hair cut, and she posed as a boy. She posed herself in the disguise, the dress of a boy for all the times, and that is the reason she had got her hair cut. So everything. Summer in Calcutta, the most famous poems in the Summer in Calcutta, Kamala Das describes about the real events, what took place in her life in Calcutta when she was away from her husband and probably had in some relationship with another man. But whatever made Kamala Das accepted that this is the real incident in her life, and this was really a summer in the Calcutta spent by her. So you will find that there are some things, reality in the poems of Kamala Das, but different types of Kamala Das. Whenever you will read the poems of Kamala Das, you will find that just opposite to this one by Aurobindo, that is a sensuous poems. So different types of the poems have been prescribed for you in your syllabus. All the poems have different charms. I will teach you all the poems here in online class, and I will dictate you the notes in offline in the coaching center. And then after this class, I will once again revise the way of the world, final revision of the way of the world. Don't miss the class. Those students especially who are absent in offline class must be present here when I will teach you the way of the world. You have been told that this is the most complicated work prescribed for you in your syllabus. If you have understand this, then the rest are very easy. I am going to start you a Doll's House, a very easy drama. However, there is a great message, but easy so because it has only 3 acts. It is, however, it is long, but act and sense are different significant. When act changes, many things changes. When scene changes, many things changes. So many, on account of having many acts and many scenes in the drama often becomes complicated. Besides this, in the way of the world, you will find that there are so many characters. I have not mentioned even the name of some character like Petland, like Witwoud. There are 2 willful, Sir Willful and Witwoud Willful. So I have not mentioned even the name of minor characters. Besides these, you will observe that there are so many characters in the drama, the way of the world. If you have understand the way of the world very easily, then you can think that on the rest of the drama are very easy for you. But when those students who are not present will find this drama difficult one. For I will be here especially for those who have missed offline class. So I once again advise you that you must be regular in online class. Before that, yes, I am here and I will engage class for you. Actually, tomorrow I have some invitation. Actually, the invitation was of this very day, but I did not go there. Probably I will go there, and I will not be present at this evening hour. I will be here. I will come back at 7:30, but it will be difficult for me to engage your class after coming from there. I will take a rest. So after from Monday, most probably on Monday, I will come again live and I will explain the way of the world very clearly on the board. I will teach you on the board. Again, I will describe you the characters in the drama. Again, I will describe you the summary in a nutshell, and then I will analyze how this is a comedy of manner. What are the quality in the drama? We can say that this is a comedy of manner. And again, I will tell you what you will find whenever you will get an opportunity to read any restoration drama, because this is the most representative restoration drama. If you understand this one only, then all the drama will become easy to you to understand of this genre. So this one is only an example through which, observing which, you can go through any the rest of the world, any drama written during the period, the restoration period, whether it is written by Congreve or Michellery or Ethan or Dryden. You know that they were 4 almost very prominent dramatists. After that, I will start A Doll's House, this most important drama after the way of the world. Okay? So thank you all. Now you will have to be present in my next class on Monday, or I will give you information if any information is essential and necessary for you. Okay?
थैंक यू सर। Yes, sir. थैंक यू सर। So I am थैंक यू existing. सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक ठीक है, फिर आएंगे मंडे को। Okay.